شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ میں دنیا کی پہلی اردو اکیڈمی گرین لرن اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جناب میں دنیا کے سب سے بہترین اور مکمل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام زاہد افضل ہے اور میں 2019 سے سکھا رہا ہوں۔ میں ہمیشہ اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ کیسے ہم پاکستان کے نوجوانوں کو آگے لے کر چل سکتے ہیں اور کیسے ان کے لیے آسان انداز میں کورسز لائیں جن کو وہ بغیر کسی کی مدد سے مکمل کر کے اپنے لیے روزگار کا ذریعہ بنا سکیں۔ پچھلے 1 سال سے لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ مکمل کورس کا مطالبہ کر رہے تھے، اور آج میں اور ہماری ساری ٹیم یہ کورس لاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہی ہے۔ یہ کورس اس طرح بنایا گیا ہے کہ اگر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کچھ علم نہیں تو بے فکر رہیں، آپ اس کورس کے بعد تجربہ کار ڈیجیٹل مارکیٹر بن جائیں گے۔ ڈیجیٹل مارکیٹر اس شخص کو کہتے ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہے۔ یہ کورس اس طرح ہے کہ اس میں آپ کو بے شمار کورسز دیکھنے کو ملیں گے اور وہ سب آپ کو ایک ایک چیز سکھائیں گے، اور یہ کورس 60 گھنٹوں پر مشتمل طویل کورس ہوگا جس میں وہ تمام چیزیں سکھا دی جائیں گے جن سے آپ ایک ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر بن جائیں گے۔ آپ اگر تجسس میں ہیں کہ کیا ہے یہ کورس تو رکیے ذرا، کیونکہ کورس شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ کورس آپ کیسے کریں گے۔ چلے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ یہ کورس کس طرح کریں گے۔ یہ کورس گرین لرن اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوگا، مگر کیونکہ گرین لرن اکیڈمی ایک ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارم ہے، لہٰذا اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اپلوڈ ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس کورس کو کرنے کے لیے آپ گرین لرن اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر جا کر پلے لسٹ پر کلک کریں گے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلے لسٹ کو محفوظ کر لیں گے تاکہ اس کورس کے ساتھ آپ جڑ جائیں۔ اسی کے ساتھ کورس میں استعمال ہونے والی تمام فائلز آپ کو ہر لیکچر کے ڈسکرپشن میں ڈاؤن لوڈ لنک کے ساتھ مل جائیں گی۔ مگر رکیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے فیس بک گروپ کو لازمی جوائن کیجیے گا تاکہ آپ سب کے ساتھ مل کر یہ کورس سیکھیں۔ اسی کے ساتھ ہماری اکیڈمی کے فیس بک گروپ کو بھی جوائن کر لیجیے گا، اور ہمارے چینل کو تو سبسکرائب کرنا آپ بھلا کیسے بھول سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کورس میں خود کو رجسٹرڈ کروایا ہے وہ اس کورس کے اختتام پر گرینڈ ٹیسٹ دے کر سرٹیفکیٹ بھی حاصل کریں گے جس کو وہ اپنے لنکڈ ان پروفائل پر لگا سکیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن تھوڑا مزید کورس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ کورس آپ کی زندگی کیسے بدلے گا۔ دراصل اس کورس میں آپ کو ایک ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر بنانے کے حوالے سے تمام مواد شامل کیا جائے گا، جیسا کہ آپ اپنی پروڈکٹ کے لیے مثالی کسٹمرز کیسے ڈھونڈیں گے، کیسے مارکیٹ ریسرچ کر کے اپنی ویب سائٹ بنائیں گے، اور پھر SEO کر کے اپنی ویب سائٹ کو کیسے تھوڑا بہتر کریں گے۔ پھر ہم ای میل مارکیٹنگ پر بات کریں گے کہ کیسے آپ گوگل تجزیات، گوگل انالیٹکس کی مدد سے اپنے ای میل سبسکرائبرز کو اپنے مثالی کسٹمرز بنائیں گے۔ مگر یہ تو ہوں گی بنیادی چیزیں، ان کے بعد ہم مزید گہرائی میں جا کر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو دیکھیں گے، جیسا کہ برانڈ کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے بڑے بڑے برانڈز جیسا کہ ایپل، ڈیل، مائکروسافٹ، کوکا کولا، نائکی وغیرہ کام کرتے ہیں، اور ہم بھی کنٹینٹ لکھنے جیسا کہ بلاگز لکھنا، ویڈیوز اور انفوگرافک کی مدد سے کسٹمرز کے درمیان ایک مثالی رشتہ بنائیں گے تاکہ ہم مزید سیلز حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح آپ سیلز سائیکالوجی کو سمجھیں گے کہ لوگ چیزیں کیوں خریدتے ہیں۔ ان سب کی مدد سے آپ مزید مارکیٹنگ کو سمجھیں گے۔ پھر ہم کاپی رائٹنگ کرنا سیکھیں گے جس کی مدد سے آپ اپنا کنٹینٹ بنانا سیکھیں گے اور اثر انداز چیزیں لکھ سکیں گے، جیسا کہ آرٹیکلز، سیلز پیجز یا اشتہاری کنٹینٹ، اور آپ ایک ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں گے جو بہترین رزلٹ حاصل کرنا سیکھ چکا ہوگا۔ اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ اپنے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر ہم گوگل اور فیس بک ایڈز کے حوالے سے مکمل طریقہ کار دیکھیں گے اور ماہر تجربہ کار ڈیجیٹل مارکیٹر کی طرح ان جگہوں پر اپنی مہارت کو تراش کر اسے بہترین بنائیں گے۔ اور پھر ہم تمام سوشل میڈیا چینلز کے بارے میں دیکھیں گے، جیسا کہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، پنٹرسٹ، لنکڈ ان، کیورا، ٹویٹر وغیرہ، اور پھر آپ اپنے کاروبار کے لیے تیار ہوں گے۔ مگر آپ
फ्रीलांसिंग करके इस हुनर को अपना जरिया माश बनाना चाहते हैं तो जनाब हमने इसका कोर्स भी शामिल किया हुआ है ताकि आप फिर कैसे नौकरी हासिल करें और कैसे एक कामयाब फ्रीलांसर बन सकें। अब आप समझ गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स में आप बेशुमार कोर्सेज सीखने जा रहे हैं। बस आपको अपने पास एक कलम और नोटबुक रखनी है या फिर कंप्यूटर पर MS वर्ड में जो सीखें उसको लिखना है और इस तरह प्रैक्टिस करके अगले लेक्चर की तरफ बढ़ना है। यहाँ से हम अपने मुकम्मल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। PDF फाइल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने PDF फाइल को डाउनलोड करना है तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक मौजूद है, आप उस लिंक के ज़रिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। किसी कारोबार की ऑनलाइन तशकीर कहते हैं प्रमोशन को। किसी कारोबार की ऑनलाइन तशकीर या किसी कारोबार की ऑनलाइन प्रमोशन करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। यानी जब आप किसी की या अपनी प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन तशकीर कर रहे होते हैं या ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे होते हैं तो आप दरअसल डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन कारोबार और प्रोडक्ट के मायने काफ़ी वसी हैं जिनको चंद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हम इस पर बाद में बात करेंगे कि प्रोडक्ट और कारोबार क्या है, लेकिन अभी आप ये समझें कि डिजिटल मार्केटर कौन होता है। डिजिटल मार्केटिंग करने वाले शख्स को डिजिटल मार्केटर कहते हैं। यानी कि अगर ऑनलाइन आप अपनी प्रोडक्ट या किसी की प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज वगैरह को प्रमोट करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटर हैं। बात आती है कारोबार क्या है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि कारोबार के मायने डिजिटल मार्केटिंग की रूह से काफ़ी वसी हैं। आप ज़रा मिसाल से समझें कि कारोबार क्या होता है। मिसाल के तौर पर कारोबार आम तौर पर नज़र आने वाली कारोबार जैसा कि दुकानें वगैरह भी हो सकती हैं। कारोबार कोई फैक्ट्री वगैरह भी हो सकती है। यहाँ पर अगर कोई शख्स अपनी मकबूलियत का फ़ायदा उठाकर पैसे कमाता है तो वो उसकी शख्सियत भी एक कारोबार का रोल प्ले करती है। अब ज़रा इसको मज़ीद मिसाल से समझिए। सबसे पहले एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने प्रोडक्ट्स बनानी है। अब फैक्ट्री एक कारोबार है, जाहिर सी बात है उसे अपने कारोबार की प्रमोशन करना होगी, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग करना होगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपनी तरफ राग़िब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे चीज़ें खरीदें। तो उसी के साथ एक आपको दुकान नज़र आ रही है जिसमें लोग मोबाइल बेच रहे हैं। देखें ये भी एक कारोबार है। अब यहाँ पर भी लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है, यानी कि अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इसी के साथ आपको कासिम अली शाह साहब दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप थोड़े से चौंक गए कि ये कारोबार कैसे हैं। ज़रा गौर कीजिएगा कि कारोबार ऐसी चीज़ होती है जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हों। यहाँ पर मैं कासिम अली शाह साहब एक इंसान है, मैं उनको नहीं बल्कि उनकी शख्सियत को दिखा रहा हूँ कि देखें अगर मैं यहाँ पर कोई कारोबार कर रहा हूँ, मुझे किसी इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत है जिससे मैं चाहूँगा कि मैं अपने कारोबार की प्रमोशन कर सकूँ, तो मैं कासिम अली शाह साहब को बुलाता हूँ। वो मेरे कारोबार के बारे में अच्छे अल्फाज बोलते हैं, जो लोग उनको सुनते हैं वो मेरे कारोबार को भी सुनेंगे, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पर मेरे कारोबार की प्रमोशन हुई, उसके बदले में मैंने उनको क्या दिया, पैसे दिए। तो उनका ये एक कारोबार है, उनकी शख्सियत ही एक असल में कारोबार है। तो इसलिए जब हम डिजिटल मार्केटिंग में कारोबार कहते हैं तो कारोबार से मुराद सिर्फ एक कारोबार नहीं होता, उस कारोबार से मुराद एक वसी मायने है। तो यहाँ पर आप कारोबार को समझ रहे होंगे कि कारोबार क्या है। अब बात आती है प्रोडक्ट क्या है। जैसा कि हम कह चुके हैं कि प्रोडक्ट के मायने भी वसी तरह हैं, मगर चलिए आप ज़रा मिसाल से समझें कि प्रोडक्ट क्या होता है। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट आम तौर पर नज़र आने वाली चीज़ें भी होती हैं जैसा कि कंप्यूटर, पंखे वगैरह, लेकिन कोई सर्विस भी हो सकती है जैसा कि डॉक्टर मरीजों का मुआयना करता है तो चेकअप करना प्रोडक्ट होगा, या टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाने का अमल प्रोडक्ट होगा। वो चीज़ें जो बेची जाती हैं जैसा कि कोई कोर्स वगैरह या कोई राज, वो भी प्रोडक्ट ही होता है। अब देखिए प्रोडक्ट को समझना डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में बहुत ज़रूरी है। कारोबार आपने कल को कारोबार बनना है, प्रोडक्ट आपने कल को डिजिटल मार्केटर बनकर लोगों की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या होती है। किसी की सर्विस भी हो सकती है प्रोडक्ट, किसी का कोई आम शेयर भी हो सकती है प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट वो चीज है जिसको सेल करके वो आमदन हासिल करते हैं, कुछ पैसे बनाते हैं। अब जैसा कि ये कोर्स है, अगर मैं ये कोर्स सेल कर रहा होता पैसों की इवज, तो मैंने इसकी प्रमोशन भी करनी थी। तो ये मेरी प्रोडक्ट थी, मैंने इसकी प्रमोशन की, मैं डिजिटल मार्केटर हुआ, मैंने जिस चीज़ की प्रमोशन की वो प्रोडक्ट हुई। तो ये चीज़ आप समझ गए यहाँ से। अब ज़रा मिसाल से देख लें, यहाँ पर देखें ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, इनको तो आप जानते हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप ऑनलाइन इनकी प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि डॉक्टर चेकअप कर रहा है एक शख्स का, वहाँ पर आप सोच में पड़ गए कि ये क्या चीज़ है। देखिए वो डॉक्टर मुआयना कर रहा है, किसी शख्स की अपनी एक अदा होती है, अगर वो चेकअप कोई बेहतरीन चेकअप करता है तो वहाँ पर वो अपने चेकअप को भी प्रमोट कर सकता है, तो या किसी और से करवा सकता है। मुख्तलिफ जगह आप देखते हैं आम तौर पर ज़िंदगी में इश्तिहार लगे होते हैं कि यहाँ आंखों का इलाज होता है, यहाँ किसी न किसी बीमारी का इलाज होता है, तो वहाँ पर डॉक्टर्स अपने आप अपनी जो सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करवा रहे होते हैं। तो वो डिजिटल मार्केटिंग, अगर हम ऑनलाइन तरीके से उनकी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग है। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो डिजिटल मार्केटिंग हर कारोबार के लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं कोई करेगा तो उसका कारोबार उस हद तक ऊपर नहीं जा सकेगा जितना कि उसको ले जाना है। अब हम बात करते हैं असरअंदाज डिजिटल मार्केटिंग क्या है। देखें, जब हम सही प्रोडक्ट सही लोगों को दिखाते हैं ताकि वो लोग प्रोडक्ट को खरीदें, तो इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग को असरअंदाज डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, यानी कि अफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें आप अपने तमाम वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उन्हीं लोगों को निशाना बना रहे होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आप उन लोगों को निशाना नहीं बना रहे होते जो आपकी प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर आपके वसाइल भी बचते हैं, आपका वक्त भी बचता है और आपकी आमदन में भी इजाफा होता है। तो इस चीज़ को कहते हैं अफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग। तो हम इस कोर्स में इसी चीज़ को देखेंगे कि कैसे हम अफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ताकि हम अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो हम अपने कारोबार को एक मुनाफा बख्श कारोबार बना सकें, या फिर अगर हम एक डिजिटल मार्केटर के तौर पर काम करें फ्रीलांसर बनकर, तो वहां पर हम किसी के भी कारोबार को चार चांद लगा सकें। तो यही फर्क है एक आम डिजिटल मार्केटर में और एक माहिर डिजिटल मार्केटर में। जो माहिर डिजिटल मार्केटर होता है वो इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग करता है। जो आम डिजिटल मार्केटर होता है वो बस पैसे फूंक देता है, कहीं ना कहीं इश्तिहार दे दिया, कहीं फेसबुक पर इधर उधर, तो वहां पर पैसे का ज़िया वो करता है। तो इसी चीज को हमने इस कोर्स में समझना है। बात आती है बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वजाहत। देखिए, इस कोर्स को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहला हिस्सा है वो बुनियादी है, उसके बाद हम इंटरमीडिएट यानी कि दरमियाने दर्जे में पहुंचेंगे जहां पर हम मजीद गहराई में डिजिटल मार्केटिंग को देखेंगे। फिर हम एक्सपर्ट यानी कि प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। उस हिस्से में हम प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग ट्रिक्स वगैरह सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले मरहले का आगाज करते हैं यानी कि बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग की। तो देखिए, बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग में आपने ये 5 चीज़ें सीखनी हैं। इन 5 चीज़ों को आपने सीखना है। सबसे पहले आपने हकीकी हदफ की तलाश को सीखना है, वो कस्टमर ढूंढना जो आपकी प्रोडक्ट को खरीदने का शौक रखते हैं या आपकी प्रोडक्ट उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। आपने ये चीज़ सीखनी है सबसे पहले। दूसरा, हम बेहतरीन वेबसाइट बनाना सीखेंगे, अपने कारोबार के लिए बेहतरीन वेबसाइट बनाना ताकि ऑनलाइन आप खुद को जाहिर कर सकें। तीसरा, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, SEO, यानी कि SEO करके हम गूगल की मदद से ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर लाएंगे। इस चीज़ को भी हमने सीखना है। उसके बाद हम ईमेल मार्केटिंग को सीखेंगे, ईमेल मार्केटिंग करना सीखेंगे ताकि हम अपने कस्टमर्स के साथ राब्ते में रहें। उसके बाद हम तमाम मार्केटिंग नताइज का मुशाहिदा करेंगे कि क्या नतीजा आया उन सब चीज़ों का जो हमने किया, यानी कि हदफ की तलाश की, बेहतरीन वेबसाइट बनाई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया, ईमेल मार्केटिंग की। इन तमाम चीज़ों का हम बगौर मुशाहिदा करेंगे 5वें नंबर पर। तो इस तरह हम अपने बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग को मुकम्मल करेंगे। फिर हम आगे चलेंगे और मज़ीद गहराई में जाकर देखेंगे। तो चलें सबसे पहले बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं। सबसे पहले मार्केट रिसर्च, मार्केट तज्जिया।
यानी कि यहाँ से हम मार्केट तज्जिया करना सीख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कामयाब तभी होती है जब आप मार्केट तज्जिया करना जानते हैं। मार्केट रिसर्च होता क्या है? आपके ज़हन में भी सवाल आया होगा कि मार्केट का तज्जिया या मार्केट रिसर्च क्या है। देखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपने हदफ को कितना बेहतर हासिल कर सकते हैं, इसका इन्हिसार मार्केट रिसर्च पर होता है। मार्केट रिसर्च से मुराद आप ये देखते हैं कि कौन लोग आपकी प्रोडक्ट को पसंद करेंगे और फिर आप उन्हीं लोगों को अपनी डिजिटल मार्केटिंग का निशाना बनाते हैं। इससे आपके वसाइल कम खर्च होते हैं और आपको बेहतरीन नताइज मिलते हैं। तो मार्केट रिसर्च आप समझ गए कि मार्केट रिसर्च में आपने ये चीज़ देखनी कि आप कैसे ये चीज़ तलाश करें कि कौन लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, यानी कि इस बात का तयन करना कि आपकी प्रोडक्ट किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ताकि उन लोगों को आप अपने इश्तिहारात दिखा सकें, उन लोगों के सामने आप अपनी प्रमोशन कर सकें। इस चीज़ को मार्केट रिसर्च कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मार्केट रिसर्च की वजाहत अपनी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग को करने से कबल हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन लोग हमारी प्रोडक्ट को खरीदेंगे और वो लोग कहाँ पर हैं और हम किस तरह उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ज़रा मार्केट रिसर्च की वजाहत में एक मिसाल भी मैं आपको देता चलूँ कि आप फ़र्ज करें कि मैं जाहिद अफजल अमेरिका की मार्केट में एक कपड़े की दुकान खोलता है, और वो कपड़े की क्या दुकान है? शलवार कमीज़। तो अमेरिका की मार्केट में मैं शलवार कमीज़ लगा कर बैठ जाता हूँ। वहाँ पर मैं एक साल बाद आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार बड़ा मुझे नुकसान हुआ, मैं सब कुछ लुट गया। तो वहाँ पर आप मुझे क्या कहेंगे? आपकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकलेगा, मार्केट रिसर्च। आप कहेंगे कि अगर तुम मार्केट रिसर्च कर लेते तो तुम्हारा नुकसान ना होता। तो वहाँ पर मार्केट रिसर्च से मुराद ये होगा आपका कि तुम पहले देख लेते कि आया जो तुम चीज़ वहाँ बेचना चाहते हो वो चीज़ वहाँ ख़रीदने वाले भी हैं या नहीं। तो इसी चीज़ को मार्केट रिसर्च कहते हैं। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में भी यही चीज़ मार्केट रिसर्च है कि आप जिस जगह इश्तिहारात देना चाहते हैं वहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि आया आपके वहाँ लोग मौजूद हैं जो आपकी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो इस चीज़ को मार्केट रिसर्च कहते हैं। ये कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अब वही बात आई कि उन लोगों को कैसे तलाश करें जो लोग हमारी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं जो हमारी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं? देखें, अपने हदफ के लोगों की तलाश का अमल दरअसल वो अमल है जिसमें हम ये ढूंढते हैं कि कौन लोग हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं और वो लोग कहाँ पर हैं, हम कैसे उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अभी आपके पास इस चीज़ का डेटा नहीं है, यानी कि आपके पास वो मालूमात नहीं है जिससे आप इस बात का तयन कर सकें कि कौन लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें हम अगली क्लासेस में देखेंगे कि कैसे वो डेटा, वो मालूमात हासिल करें। लेकिन हम अभी बायर पर्सोना बनाना सीखेंगे, यानी कि बायर पर्सोना पर मैं अभी बात करूंगा, लेकिन अगले लेक्चर में हम बायर पर्सोना बनाना सीखेंगे और वहीं से हमें मालूमात का अंदाज़ा होगा कि हम कैसे ये मालूमात इकट्ठी करते हैं कि कौन लोग हमारी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। बायर पर्सोना की मैं बात कर रहा था तो आपके ज़हन में सवाल आया कि बायर पर्सोना क्या है। आया ये बायर पर्सोना चीज़ क्या है जिसके बारे में सर ने बात की। तो देखिए, बायर पर्सोना दरअसल एक तस्वराती शक्ल है जो हम अपने खरीदारों या सामीन के मुश्तरका खसूसियात को देखते हुए बनाते हैं। यानी हमारे सामीन, हमारे कस्टमर्स की मुश्तरका खसूसियात, मुश्तरका मालूमात के मजमूए को हम बायर पर्सोना कहते हैं। यानी कि अगर 10 लोग मेरे से कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर मैं 100 लोगों को अपनी चीज़ दिखाता हूँ, उनमें से 10 लोग चीज़ खरीदते हैं, तो मैं उन 10 लोगों की मुश्तरका खसूसियात, उन 10 लोगों की मुश्तरका मालूमात को इकट्ठा करूँगा और उस मुश्तरका मालूमात जो मैंने इकट्ठा की उसको मैं एक टेम्पलेट में डाल दूँगा। यानी कि अब टेम्पलेट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें मैं जमा जब करूँगा तो उस चीज़ को मैं बायर पर्सोना का नाम दूंगा। मैं कहूँगा कि जिस बंदे में ये खसूसियात मौजूद होंगी वो बंदा मेरी चीज़ें खरीदेगा। तो बायर पर्सोना ये चीज़ तयन करने में मदद करता है कि कौन लोग आपकी चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये एक टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है, इसको टेम्पलेट कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कुछ मैंने ऊपर लिखा हुआ है बायर पर्सोना। तो ये दरअसल बायर पर्सोना का ही टेम्पलेट है। इसमें बुनियादी मालूमात मैं इकट्ठी कर रहा हूँ
کہ جن لوگوں نے میری چیزیں خریدی ان کی عمریں کیا ہے، ان کا جنڈر کیا ہے، ان کے شوق کیا ہے، وہ رہتے کدھر ہیں، ان کا رجحان کس طرف ہے، ان کی آمدن کتنی ہے، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد میں ان کے پروفیشنل گولز کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے ان کا کریئر کا گول، وہ کیا بننا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جو چیزیں معلومات میری پروڈکٹ سے متعلق ضروری ہوں گی ان چیزوں کو میں اکٹھا کروں گا۔ یہ بائر پرسونا کیسے بناتے ہیں، کیسے ہم بنائیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرے لیے کون سی معلومات اگر ضروری ہے جو میں اکٹھی کروں اپنے کسٹمر سے۔ تو یہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے بائر پرسونا کیسے بناتے ہیں۔ ابھی آپ نے جتنے بھی چیزیں دیکھی ہیں آپ ان کو ایک نوٹ بک میں لکھ لیں تاکہ آپ ان کو بھولیں نہ، اور ان کو دہرائیں اتنا کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں، کیونکہ جب ہم آگے جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو پچھلی چیزیں بھول جائیں۔ اگر وہ پچھلی چیزیں آپ اگر بھول جائیں گے تو آگے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آج بتائی ہیں ان تمام چیزوں کو آپ کہیں لکھ لیں، اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آپ جو بھی سوال لکھیں وہ کورس سے متعلق ہی ہو، تو تاکہ میں آپ کو فوری جواب دے سکوں۔ تو یہاں پر آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔